So students, as you must have got that good news कि CBSE ने अपना कोर्स 30% तक कम कर दिया है. The moment there is a good news, along with that there is a piece of responsibility which is always shared. So the responsibility for you, for us, for everyone is going to be कि जो चीज बची है, जो चीज आपको कोर्स में दी गई है, that has to be completed in its best possible ways. Word by word, line by line is going to be our objective, so as to secure the best possible marks in your exams. क्योंकि एक चीज मान के चलिएगा कि जब कोर्स इतना कम किया गया है तो शायद पेपर उतना आसान ना आए. They will make sure that they have to create a fair competition. So students, as I have told you, each and every line, every page is important of the course now. So let's start with the very first page of the NCERT book, and you can see a beautiful image, a beautiful picture made by a French artist named Frédéric Soreille. Frédéric Soreille was a French artist, as I have told you, and he made this painting in 1848. The name of the painting is The Democratic and Social Republics. This picture has some clear interpretations, जो कि उस आर्टिस्ट का विजन था, तो हम उसको समझते हैं कि उसने इस पिक्चर में क्या आपको समझाया है. पहली बात, द फर्स्ट थिंग इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, दिस टर्म लिबर्टी इज अ फीमेल फिगर which is the symbol of freedom in France at that time. Rather, it was a symbol for those French revolutionaries at that time. Okay. The second thing, as you can see, there is a trail of people. Again, please observe the flags, the various people, the ages, man, woman, everybody is there. And you can see some of their shattered remains, यानी कि कुछ अवशेष बचे हुए हैं किसके? These are the remains of the absolutist institutions of Europe. And lastly, you can see the presence of God from heavens. That is, we can see Jesus, we can see saints, we can see angels who are giving their blessings for fraternity to all these people. यानी कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं इस बात का कि बॉस आप लोगों में ये भाईचारा बना रहे. But this entire thought, this vision is termed as a utopian vision of Frédéric Soreille. Now, what is utopian vision? This is again a 1 mark question which could be there in your paper. So let's understand this. If I say utopian vision, then what is that? The vision of society that is so ideal that it is unlikely to exist. Why? Let's take an example कि मैं आपसे आज कहूं कि भारत में राम राज्य स्थापित हो गया है. राम राज्य का क्या मतलब है? कि हमें किसी का डर ही नहीं है. Like nobody can steal something, nobody can kill someone. हर कोई बड़े भाईचारे से है, जहां पे कि यदि किसी को तकलीफ है तो जिसके पास पैसा है वो उस तकलीफ को पूरा कर देगा. कोई खाना नहीं खा पा रहा है तो कोई उसको जाके खाना खिला देगा. लेकिन दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड. सो इट वाज कंसिडर्ड एज अ यूटोपियन विजन ऑफ सोसाइटी. ओके, नाउ आफ्टर दिस you can see a design on your screen. Again, one more image. Is this the right word for this image? Is this a design? No. You will say it is a map. But this map, do you think it is a complete map as of now? No, again. This is the political map of Europe having 40 plus countries, but the name of the countries is not visible. तो चलिए एक काम करते हैं बड़ा मजेदार सा. Let's complete this map and mention the name of the countries which are relevant to us for this chapter. यानी कि वो उन कंट्रीज का नाम कम से कम हम ढूंढ के रखते हैं जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर आगे कहीं ना कहीं रेफरेंस में आएगी. एंड वी शुड नो कि वो यूरोप के मैप में कहां पर है. द कंट्रीज आर फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, हॉलैंड. अच्छा, नीदरलैंड एंड हॉलैंड आर सेम, ऑलमोस्ट सेम, लाइक दे आर इन द सेम मैप. फाइन. बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, यूके, आयरलैंड, हंगरी, Russia, Spain, Greece. This is the list of the 14 countries about which we are going to study in various formats in the topics to come. कहीं पे हम किसी का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, कहीं पे हम कहीं पे रेवोल्यूशन पढ़ेंगे. तो you should know कि ये यूरोप के मैप में कहां एग्जिस्ट करती हैं. This is going to help us a lot. Now, let's move forward and understand कि why I have done this activity with you all. तो चलिए एक छोटा सा कैच है. अब जो स्क्रीन आपके सामने है, अगेन एक पिक्चर आपके सामने है, एंड आई वुड आस्क यू टू डू द सेम थिंग अगेन. जरा सोचिए, क्या इस मैप के ऊपर आप उन्हीं कंट्रीज को दोबारा से मार्क कर पाएंगे?
जस्ट थिंक अबाउट इट, मुझे नहीं लगता बड़ी मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि अभी जो मैप आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मैप है मिड 18th सेंचुरी का, यानी कि ये वो टाइम था जबकि पूरा की पूरा यूरोप मोनार्कियल डायनेस्टीज के अंडर में था। दे वर द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स हु वर रूलिंग यूरोप। इस टाइम की एक कड़वी सच्चाई ये थी कि यदि आप एक कॉमन मैन से जाकर के ये पूछते कि कहां रहते हैं आप, तो शायद वो अपनी कंट्री का नाम तक नहीं बता पाता। वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को जानता होता था, हु वॉज देयर किंग, द मोनार्क। ओके, इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये जो मोनार्कियल गवर्नमेंट्स थी, they were called as we have discussed few minutes back, they were the absolutist institutions. So now, once I say this term absolutist, what does it mean? Again, this chapter background, this understanding is very important. Okay, so a government or system of rule, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट या एक ऐसा रूल that has no constraints, यानी कि जिनके ऊपर किसी भी टाइप का कोई कंट्रोल ना हो, फाइन, अंकुश ना हो, ऑन द पावर्स एक्सरसाइज्ड। दैट मीन्स कि उनके ऊपर अपनी ताकत को यूज करने के ऊपर किसी टाइप का कोई कंट्रोल नहीं था। आप सोचिए कि इन हिस्ट्री, वंस वी अंडरस्टैंड दिस टर्म, इट सेज इट रेफर्स टू अ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। द मीनिंग ऑफ दीज थ्री टर्म्स आर, सेंट्रलाइज का मतलब पूरी पावर एक सोर्स पे है, एक ही जगह पर सारी ताकत है। सेकेंड इज मिलिटराइज्ड, ऑब्वियसली यदि आपके पास ताकत है तो मिलिट्री होना मैंडेटरी है, मिलिट्री तो होगी ही होगी, तभी तो अपनी उस ताकत को दिखा पाएंगे। एंड लास्टली दे आर रिप्रेसिव, यानी कि दमनकारी, जिसने कुछ आवाज उठाई उनको दबा दो। सो दिस इज हाउ यूरोप वॉज इन मिड 18th सेंचुरी। आई वुड अगेन आस्क यू टू कीप दिस अंडरस्टैंडिंग क्लियर कि हमने जो इससे पहले मैप देखा था, वो मैप था एक ऐसे यूरोप का जहां पे की कंट्रीज का नाम आपने मार्क किया, एंड दिस इज द मैप विच शोज कि बॉस कंट्रीज है ही नहीं। तो यहां पे था कौन? यहां पे वो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर, एम्पायर ऑफ रशिया, हैब्सबर्ग एम्पायर, बोरबॉन एम्पायर एंड द ह्यूज लिस्ट इज देयर। इस सारी डार्कनेस के साथ में एक छोटी सी रे ऑफ होप भी है। जब अंधेरा इतना बढ़ जाए कि समझ ही ना आ रहा हो कि हम क्या देख रहे हैं और क्या समझें, तो कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप दिखाई देती है। व्हाट इज दिस रे ऑफ होप? एक छोटा सा आपको सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा होगा, a sun is rising. What this sun was? So let's see what is this sun. So this was the rise of nationalism in Europe. Nationalism. This is the term which was the power, it was the force जिसने कि धीरे 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 यूरोप के सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डोमेन्स के ऊपर इतना असर किया that it finally helped these countries in emerging as nation states. Okay, this concept of nation states is something very important again. So for the day, this is going to be the third important definition that we need to understand. So what is nation state? Nation state is one wherein majority of its citizens with its leaders and नॉट ओनली इट्स रूलर्स। यहां पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा इस डेफिनेशन में कि देखिए, जब नेशन स्टेट्स की बात होगी तो ऐसा नहीं है कि केवल सिटीजन्स ने या लीडर्स ने उस चीज को अचीव किया। कहीं ना कहीं आप आगे देखेंगे कि इवन दीज रूलर्स, दीज एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस आल्सो हैव प्लेड द रोल। सो उनको भी इस डेफिनेशन में आना जरूरी है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन दैट नेशन स्टेट्स इज वन wherein majority of its citizens with its leaders and its rulers came to develop a sense of common identity. First thing, यानी कि एक ऐसी पहचान जिससे कि उस रीजन को, उन सारे लोगों को एक साथ पहचाना जा सके। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, इफ somebody is in US, तो उनसे यदि पूछा जाएगा आप कहां से हैं, तो आई एम फ्रॉम इंडिया। तो भारत, इंडिया हमारी पहचान है। दिस इज आवर कॉमन आइडेंटिटी। Shared history. We all have shared, we all have a common history. We have our ancestors who have fight for our nation. So this is the second important thing, that there is a shared history between all of us. And finally, this commonness, यानी कि ये जो एक common identity है, वो हमें गिफ्ट में नहीं मिली है. It has been achieved by the struggle of these people, these common man, the leaders of ours. So Ernest Renan was the person who has briefed this concept of nation state in 1882, and he has also given one more definition, the term called plebiscite.
Plebiscite is a direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal. फाइन, मैंने इसको एज इट इज पढ़ा है जैसा कि आपकी बुक में लिखा है. इसका सिंपली ये मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, एक प्रपोजल दिया जाए और कहा जाए कि इसको आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लेबिसाइट.